Hello students, welcome back. Let's continue with permutation and combination. आज हम लोग करने वाले हैं that is selections में, that is combination में we are going further and that is called total number of selections. Total number of selections. Total number of selection का मतलब क्या हुआ? Suppose we have an distinct object and we have to pick suppose two objects. In how many ways we can do this? We can do it in NC two ways that you know. Suppose we have to pick 5 objects and that can be done in NC 5 ways. Suppose you have to pick 10 objects, you can do it NC 10 ways. Suppose you have to pick one object, you can do it in NC 1 ways. Suppose you are not going to pick any object, that is called zero object. You can do it in 1 ways, that is NC 0. So all these methods are for fixed number of selection. But when we talk about total number of selections, we mean कि we are not even telling you कि how many objects you have to pick. You just have to make a selection. Means you can pick 0 object, you can pick 1 object, you can pick 2 objects, 3 objects, or you can pick all of them. That is all your choice. Whatever you want, you can do. Any number of object you can select. जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट आप पिक कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, आपको कुछ नहीं बताया गया है. आप जा करके खाली हाथ भी वापस आ सकते हैं, सब लेकर के भी आ सकते हैं और कुछ लेकर के भी आ सकते हैं. सो दैट इज हाउ इट इज. Now, suppose we have to find number of ways. So, 0 object pick करने का तरीका होगा NC 0 ways. In how many ways we can pick one object? That is NC 1. In how many ways we can 2 object? That is NC 2. For 3 object we have NC 3 and for n objects we have NC. You can also say, sir, मेरा n plus 1 pick करने का मन हो. Yes, you can. But how many ways? That will be 0 ways because n objects में से n plus 1 object you cannot do. So these are the total number of selections. But इनको add करना है या फिर multiply करना है, rule of addition or rule of multiplication. So you have to think कि what is the term between these, and या or. So when some students put it out कि sir एक put करेंगे एंड 2 का ये तरीका है एंड 3 का ये मेथड है एंड 4 का ये मेथड है एंड n का ये मेथड है. सो वी आर यूजिंग एंड वर्ड, सो वी शुड पुट इनटू साइन. लेकिन स्टोरी ये है कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज ऑल ऑफ देम. ईदर यू आर पिकिंग 0 और 1 और 2 और 3 और 4. Just think of one situation. One situation में what you are going to do? Are we going to this and this and this and this? No, you are going this or this or this or this. इसमें से कोई एक ही काम करने वाले हैं. And as they have or sign or word in between them, so we are going to add them. This value you already know if you have done binomial theorem. अगर आपने binomial theorem किया हुआ है, तो you already know कि इसका वैल्यू 2 पावर n होता है. और अगर नहीं किया हुआ है दैट्स ओके, जब करेंगे तो पता चल जाएगा. सो दिस इज 2 पावर n ways. टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज 2 पावर. नाउ वन मोर आइडिया लेट मी गिव यू, एंड दैट आइडिया इज कि यू हैव फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यू हैव सेकेंड ऑब्जेक्ट, यू हैव थर्ड ऑब्जेक्ट, यू हैव फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड यू हैव nth ऑब्जेक्ट. Let's talk about the objects. First object के लिए what do you have? And we can say first second because this is basically distinct object. तो object 1, object 2. First second नहीं भी बोलोगे चलेगा. You can say object 1, object 2, object 3. Like suppose we have A, B, C, D, E, F, G, H up to Z. मतलब 26 letters हैं. You have to just make a selection. तो you can say A को
सेलेक्ट किया या सेलेक्ट नहीं किया. दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज. थिंक ऑफ इट. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए विल हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज. या तो उसको पिक करोगे या पिक नहीं करोगे. सो आई विल से कि दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए वी हैव टू पॉसिबिलिटी. एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए अगेन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, बिकॉज टू ही होंगी ना. या तो पिक करोगे, दैट इज वन वे. पिक नहीं करोगे, अनदर वे. देयर इज नो अदर वे. थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए अगेन वी हैव टू. फोर्थ के लिए टू एंड nth के लिए टू. नाउ इन अ सिंगल सिलेक्शन यू विल से कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पिक किया या नहीं किया, एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सबके बारे में बताना पड़ेगा. लाइक आई से कि भाई हमें 4 लेटर्स पिक करने हैं, तो यू हैव टू टेल कि मैंने ए को पिक किया, बी नहीं किया, सी को नहीं किया, डी को नहीं किया, ई को किया, एफ को नहीं किया, ऐसे सो ऑन. सो एवरी number is important, so we are going to multiply them, and what we are getting is again 2 power n. So these are the two different ways. अगर बाइनोमियल किया हुआ है तब तो बहुत आसानी से आपको 2 power n पता चल जाएगा. नहीं किया हुआ है तो दिस मेथड विल डू फॉर नाउ. अभी के लिए ये मेथड, और जब बाइनोमियल कर लेंगे तो फिर आपको 2 power n समझ में आ जाएगा. So this is the method of selecting any number of objects from n distinct objects. Now, suppose we have n similar objects. If we have n similar object, then what will happen? In how many ways we will be able to? So, जीरो ऑब्जेक्ट पिक करने के कितने तरीके होंगे? इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक जीरो ऑब्जेक्ट? वन वे. ओके, लेट मी राइट हियर वन. दिस इज फॉर सिमिलर. ओके, इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक वन ऑब्जेक्ट? NC1. n सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, वन पिक करना है, दैट कैन बी डन इन NC1 वेज, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज रॉन्ग. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब 10 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स में से 1 एप्पल पिक करना है. यू कैनॉट से कि सर ये वाला एप्पल पिक कर लो या वो वाला एप्पल पिक कर लो. कोई भी एप्पल पिक करोगे सब एक जैसा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर. लाइक सपोज इफ आई गिव यू 5 A's, 5 A है, 5 A में से यू हैव टू पिक 1 A. इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट? यू कैन से सर फर्स्ट वाला या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ. ओके, लेट मी टेल यू. सपोज मैंने ये एक A पिक किया. कैन यू टेल मी मैंने कौन सा पिक किया है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? नो, यू कैन नॉट, बिकॉज दीज आर ऑल सिमिलर. और अगर सिमिलर हैं तो देयर विल बी अगेन ओनली वन वे. ओके, 2 ऑब्जेक्ट्स पिक करने. डिस्टिंक्ट थे तो NC2 आया, सिमिलर है तो क्या होगा? सपोज वी हैव टू पिक 2 A's. ओके, लेट मी पिक 2 A's. बता चले सका कि कौन कौन सा ए पिक किया मैंने? फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर्थ या सेकेंड फोर्थ या थर्ड फिफ्थ, विच वन? नो, यू कैन नॉट. एंड सो अगेन द नंबर ऑफ वे इज 1. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो NCR का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, मतलब ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, तो देयर विल बी ओनली वन वे. चाहे आपको 5 पिक करना हो या 10 पिक करना हो या 7 पिक करना हो या ऑल पिक करने हो या एक भी नहीं पिक करना. सो एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए यू नीड वन वे, और ऑल n के लिए भी वन वे. सो टोटल केसेस क्या मिले यहां पे? इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक अ सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम n सिमिलर ऑब्जेक्ट. This will be 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, and that gives us, bolo, that gives us n ways, which is wrong, because 0 से n तक कितने टर्म्स होते हैं? How many terms are there from 0 to n? 0 से n में n plus 1 ways होते हैं. 0 से 1 तक 1 टर्म थोड़ी होगा, 2 टर्म होंगे ना, 0 होगा और 1 होगा. 0 to 5 तक हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 5 नहीं, 6 होगा. अच्छा, 5 to 10 तक कितने टर्म्स होंगे? 5 to 10 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर?
and there will be 10 minus 5. 5 terms, which is wrong. There will be 6 terms. See, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. कि कई बार मैं बता चुका हूं कई सारे वीडियोस में, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम m to n is not n minus m but n minus m plus 1. 2 से 5 तक कितने टर्म्स होंगे? 5 minus 2 3, no, plus 1 4. कैसे? 2, 3, 4 and 5, 4 terms. So you have to remember 0 से n तक n minus 0, that is n plus 1, that is n plus 1 terms only. Now I am going to combine them together. Combine करेंगे तो I can say कि total number of selections from n distinct objects, and that will be 2 power n. And second, I will say n similar objects होंगे, तो that will be n plus 1. Total number of selections from n distinct objects will be 2 power n, and then similar object will be n plus 1. Then there is a term comes up, and that is called non-empty selection. Non-empty selection का मतलब क्या हुआ? Non-empty selection का मतलब हुआ कि खाली हाथ नहीं आएंगे, सॉरी खाली हाथ नहीं जाएंगे. वो मूवी गाना याद आ गया मुझे, ऋतिक रोशन का, खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ जाएंगे. So it is not going to happen. We are given the condition that selection is non-empty. खाली हाथ नहीं जाना है, मतलब NC0 वाला केस हटा देना है. If I remove this NC0 वाला केस, then how many ways we can do this? ये टोटल 2 power n था. NC0 का वैल्यू क्या होता है? वैसे 1 होता है, तो उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे. So what do I get? I get 2 power n minus 1 from n distinct objects. और अगर n सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? For n similar objects we will have, यहां से भी क्या होगा? ये n plus 1 times 1 था, 0 वाला केस हटा दिया यहां से, तो सिर्फ n times 1 बचेगा, and that will be n. देखो दोनों केस में 1 1 कम हो गया, यहां 1 कम हो गया, सॉरी ये पावर में 1 माइनस नहीं होगा, टोटल में -1 होगा. सो एक तो मैंने टोटल में से यहां से 1 कर दिया और ये भी टोटल में से 1 कम कर दिया. सो दिस पार्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस. दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तो 2 power n, n सिमिलर होंगे तो n plus 1. अगर नॉन एम्प्टी करना है तो एम्प्टी वाला केस माइनस कर दिया, 1 1 केस ही होता है, खाली हाथ जाने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज 1 वेस्ट टू 1, दोनों में से माइनस किया, 2 power n में से 1 माइनस किया, n plus 1 में से n माइनस किया. सो एक सिस्टमैटिक क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. सपोज वी हैव 10 different fruits. If you have 10 different fruits, in how many ways you can pick 5 of them? That will be 10 C5. If we have 10 similar fruits, then you can pick 5 in 10 C5 ways will be wrong answer. That will be 1 way. 10 में से 5 पिक करना है, एक ही तरीका होगा, कोई भी 5 पिक कर, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. बट तो एनी 5 के लिए दिस विल बी 10C5 एंड दिस विल बी जस्ट 1. अच्छा, सपोज वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन. तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इन दिस केस विल बी 2 power 10. और डिसिमिलर में क्या हो जाएगा? 10 plus 1 11. सिमिलर में इट इज n plus 1. अच्छा,
non-empty, if I talk about non-empty selection, what will happen? Non-empty में this will be 2 power 10 minus 1. In this case, it will be 11 minus 1, that is 10. So this is a simple scenario, a simple scene of total number of selection. This part you have to understand and you have to basically remember this. After this, I am going to give you one example and that will include so many questions and your concept will be clear. बहुत आसानी से clear हो जाएगा. Very simple idea. Just understand this part. This is the basic. कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आपको 0 पिक करना है तो NC0, 1 पिक करना है NC1, 2 पिक करना है NC2. सिमिलर हैं तो 0 पिक करना है तो भी 1, 1 पिक करना है तो भी 1, 2 पिक करना है तो भी 1. So I am going to continue with this video with some examples. So stay focused, stay tuned. Okay, so now we are going to solve some example. Let's say we have 10 apples, 8 bananas, 5 oranges, and 1 watermelon and 1 papaya. These many fruits we have. And obviously we now know that all the apples are actually same, all bananas are same, all oranges are same, all एक ही watermelon है वो same ही होगा, 1 papaya है वो भी same होगा. But these are different with each other. Apple will be different from banana, banana will be different from orange. So that is the whole idea. Now suppose you have to make a selection and the first question is total number of selections. First one is total number of selections. Second one, let me say non-empty selection. जो आपको कराया गया है थियोरेटिकली उसमें क्या था, या तो सारे सेम है या सारे डिफरेंट है ना. दिस इंक्लूड एवरीथिंग. कुछ सिमिलर कुछ डिफरेंट, यहां पे क्लैरिटी आएगी, फिर यू विल बी एबल टू मैनेज. एटलीस्ट वन ऑफ ईच फ्रूट, दैट वी नीड. देन at least 2 apples, at least 2 apples. Then exactly 3 bananas. Then either watermelon or papaya, but not both. These kind of possibilities are there. So we are going to solve them one by one. Pause करो वीडियो को और solve करने का try करो because I am going to solve. So again, so total number of selections की बात कर रहे. Let's talk about apples. How many ways you can make a selection of apples? In how many ways you can make a selection of apples? That would be 11 ways. बनाना के लिए you have 9 ways, oranges के लिए you have 6 ways, watermelon you have 2 ways, and papaya you have 2 ways. 2 ways या 1 way? 2 ways, either to pick papaya or to not, to pick watermelon or not. Orange के लिए 6 cases कैसे बोला मैंने, n+1 हुआ करता था, और either 0 orange, that is 1 way, 1 orange एक और, 2 orange का भी एक ही तरह का होगा, that is again 1 way, 4 ऑरेंज का भी एक होगा, 3 ऑरेंज का भी एक होगा और 5 ऑरेंज का भी 1 होगा. सो टोटल वी हैव 6 केसेस, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए. सो सिमिलर में n+1 होता है. तो वन आंसर कुड बी 10 + 8 18, 18 + 5 23 + 2, total 25 fruits we have. The total number of selection will be 26 or 2 power 25. इसी दोनों में से कोई होगा. Either it will be 2 power 25 or it will be 26, या तो 2 power n या n+1, but actually not. ऐसा नहीं होगा. तो फिर क्या होगा? और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्यों ऐसा नहीं होगा? Because
ना तो सारे सिमिलर हैं तो n+1 नहीं लगा, और ना ही सारे डिफरेंट हैं तो 2 पावर n भी नहीं लगा. So we have to talk them one by one. So first 10 apples के लिए we have 11 ways. And bananas की बात करते हैं. हर एक सिलेक्शन में सबके बारे में बात करनी पड़ेगी. You have to talk about apple, banana, oranges, watermelon and papaya in all the cases. So if we talk about apples, because all apples are similar, so that can be done in 11 ways. And मतलब into bananas के लिए we have 9 ways, orange के लिए we have 6 ways, watermelon we have 2 cases, and papaya you have 2 cases. So these many number of ways, this is too much, बहुत ज़्यादा होगा. Okay, so this is total number of ways. लगभग क्या होगा, 6 हो जा 24 into 99, मतलब 2400 से 24 कम 2376, तो 2400 के आसपास नंबर ऑफ वेज होंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन. मतलब अगर बोला जाए कि हाउ मेनी पीपल, क्वेश्चन को ऐसे रिफ्रेम किया जा सकता है कि हाउ मेनी पीपल कैन कम एंड पिक अप द फ्रूट्स सो दैट नो टू ऑफ देम हैव द सिमिलर सेट ऑफ फ्रूट्स. कोई भी दो लोगों के पास सेम नंबर ऑफ फ्रूट, सेम set of fruits नहीं होना चाहिए. ऐसे how many people can come and go, and that will be this. इसमें एक क्या होगा, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे. सेकेंड वन विल से कि भाई मैं तो एक एप्पल ले लेता हूं चलेगा, an apple a day keeps the doctor away, if that is not adulterated, मतलब केमिकल फ्री हो तो. अदरवाइज आजकल तो बहुत सिचुएशन है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट. समून से कि चलो एक केस क्या हुआ 0 फ्रूट का, एक हुआ 1 एप्पल. सेकेंड एप्पल मैं 2 एप्पल ले लेता हूँ, 2 दिन खा लूंगा. कोई आएगा 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, 6 एप्पल, 7 एप्पल, 8 एप्पल, 9 एप्पल, 10 एप्पल, 11 एप्पल, सॉरी 10 एप्पल, तो 11 वेज वो हो गए. अब फिर 12th होगा 1 बनाना, फिर 2 बनाना, 3 बनाना, 4 बनाना, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3, 4, 5, 1 वाटरमेलन, 1 पपाया. ये तो सारे सिंगल फ्रूट वाले हो गए. समवन से कि लेट्स टेक 1 एप्पल 1 बनाना, 1 एप्पल 2 बनाना, 1 एप्पल 3 बनाना, 1 एप्पल 4 बनाना, 1 एप्पल 5 बनाना, 1 एप्पल 6 बनाना, 1 एप्पल 7 बनाना, 1 एप्पल 8 बनाना. I was trying to breathless actually. That's okay. So this is the idea. So there will be 2376 cases if that is the value. So these many total number of selections are possible. Like if I say कि you have 5 A's, English alphabet का letter simple 5 A's है. How many words can you make using these letters? How many words can be formed using 5 A's? And that will be definitely 5 only. कौन कौन से? One will be A. Second will be AA, third will be AAA, fourth will be A, or fifth will be A. These are the 5. But फॉर्मूले में तो n+1 लगता है, उसमें तो empty वाला भी आता है ना. बट यहाँ पे वर्ड बनाना है तो you cannot make empty word. कि वर्ड क्या है, कुछ नहीं, you cannot do that. वर्ड आपको बनाना है तो that will be non-empty selection. So that is how it goes. अब अगर मैं बी भी ऐड कर देता हूं, एक सिंगल बी ऐड करूंगा तो सबके सब केसेस काफी सारे ऐड हो जाएंगे. अगर एक सिंगल बी मैं और ऐड कर देता हूं 1 बी, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी हाउ मेनी, 5 एस के लिए वो अभी आएगा. तो नाउ नेक्स्ट इज नॉन एम्प्टी सिलेक्शन. आपको खाली हाथ नहीं जाना है, यू कैन नॉट मेक एम्प्टी सिलेक्शन. सो व्हाट वी डू, दैट कैन बी डन इन, थिंक ऑफ इट. तो भाई खाली हाथ नहीं जाना है, दैट कैन बी सेड कि एटलीस्ट 1 फ्रूट हैज टू बी टेकन. और जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड आता है, व्हाट वी डू इट लाइक टोटल माइनस नॉन फेवरेबल. सो अगर बोलते भाई नॉन एम्प्टी सिलेक्शन करना है, मतलब एटलीस्ट 1 फ्रूट तो लेके जाना है, मतलब टोटल माइनस नॉन फेवरेबल क्या है, 0 फ्रूट वाला केस. तो 0 फ्रूट वाला केस क्या होगा, देयर विल बी ओनली 1 वे ऑफ एम्प्टी हैंडेड. खाली हाथ जाने का तो एक ही तरीका है, ऐसे जाने का कि मैं जा रहा हूं, मैं कुछ पिक नहीं करूंगा. दैट इज 1 वे, वी हैव टू सबट्रैक्ट. सो एटलीस्ट 1 ऑफ ईच
वन ऑफ ईच के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एप्पल तो लेके जाना ही है, मतलब आए हो तो कुछ तो लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, इट डजंट लुक गुड, इट इज लाइक दैट. सो इफ वी हैव टू टेक एटलीस्ट वन एप्पल, देन देयर विल बी टोटल 10 वेज. 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3, 4, 5 एप्पल, 6, 7, 8, 9, 10 एप्पल. जो 0 एप्पल वाला केस 1 था वो सबट्रैक्ट हो गया तो 10 आ गया. बनाना के लिए we had 9 cases, but now we have 8 cases because at least one of each का मतलब सारे फ्रूट एक एक लेके जाने. ऑरेंज वाले में मिलेगा 5, वाटरमेलन में 1 एंड पपाया में 1, एंड दैट इज जस्ट 400 ways. 400 ways you will be able to manage if you have to take at least one of all these fruits. सारे फ्रूट्स एक एक तो लेकर के जाने ही हैं, तो that can be done in 400 ways. Too much of a difference. ये दो हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, नॉन एम्प्टी और एटलीस्ट वन में क्या डिफरेंस है. एटलीस्ट जब मैं नॉन एम्प्टी बोलता हूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स राइट दिस वन, बिकॉज बोलते हैं भाई नॉन एम्प्टी, सर ने बोला था कि टोटल n+1 एंड नॉन एम्प्टी n. दैट वाज फॉर सिमिलर ऑब्जेक्ट. सिर्फ इतने ही होते तो सीधा वो फॉर्मूला लगता 10 का, सिर्फ b होते तो फॉर्मूला लगता. यहां कुछ ऐसा भी है, कुछ वैसा भी है. सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि एम्प्टी वाला केस माइनस करना है, और एम्प्टी का सिर्फ वन केस होता है. कौन सा? ये वाला, कि नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम गोइंग एम्प्टी हैंडेड. दैट कैन बी डन इन ओनली वन वे. याद करो, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन डिस्टिंक्ट में क्या था, 2 पावर है. जब -1 किया तो n में -1 नहीं किया, टोटल में -1, तो यहां पे भी टोटल में ही -1 होगा. लेकिन जब कहता है एटलीस्ट वन ऑफ ईच, तो फिर ईच में -1 होगा. अब ईच का 11 था तो 10 हो गया, 9 था तो 8 हो गया, एंड सो एटलीस्ट 2 एप्पल्स वी हैव टू टेक. बाकी में कोई कंडीशन नहीं है. तो एक काम करते हैं, बनाना के लिए वी हैव 9, ऑरेंज वी हैव 6, वाटरमेलन के लिए वी हैव 2 ways, पपाया वी हैव 2 ways, and at least 2 apples. 2 apples के लिए how many cases we have? So at least 2 apple का मतलब हुआ टोटल माइनस नॉन फेरेबल कर लेते. टोटल है 11, उसमें से नॉन फेरेबल क्या होगा, कहता है मिनिमम 2 एप्पल तो चाहिए, और अगर मिनिमम 2 एप्पल्स वी नीड, देन व्हाट? वी डू नॉट नीड 0 एप्पल, वी डू नॉट नीड 1 एप्पल, वी डू नॉट नीड, ओके दैट्स इट. 0 एप्पल वाला केस और 1 एप्पल वाला केस हटा देना है. तो 0 एप्पल वाला केस होगा 1 और 1 एप्पल वाला केस भी होगा 1, तो दैट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. ना यू हैव टू फोकस इट. जब एटलीस्ट 1 ऑफ ईच था तो 11 - 1 किया. यहां कहता है एटलीस्ट 2 ऑफ एप्पल, इसलिए 0 एप्पल और 1 एप्पल के 2 केसेस माइनस हो जाएंगे. एटलीस्ट 3 एप्पल होता तो 0 एप्पल का एक केस, 1 एप्पल का एक केस और 2 एप्पल का एक केस यहां से माइनस हो जाता, एंड दैट वाज एटलीस्ट 2 एप्पल्स. नाउ वी आर गोइंग फॉर एग्जैक्टली 3 बीज, एग्जैक्टली 3 बनानाज वी नीड. सो एप्पल के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो 11. बनाना के लिए एग्जैक्टली 3 बनाना, हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस? 8C3 is wrong answer. That will be done in only one way, because all bananas are equal, so that can be done in only one way. Orange के लिए 6, watermelon का 2, papaya का 2, and that is your answer. ये और भी कम हो गया. Either watermelon और papaya, but not both. दोनों नहीं लेना है. क्या करें? ईदर वाटरमेलन और पपाया. वो अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो पॉज करो, फिर से ट्राई करो, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस. सो ईदर वाटरमेलन और पपाया मतलब दोनों एक साथ नहीं लेना है, तो टोटल माइनस दोस 2 आर टेकन वाला केस माइनस कर दो. तो ईदर वाटरमेलन और पपाया बट नॉट बोथ, मतलब टोटल माइनस वाटरमेलन एंड पपाया. This is the first thought that comes to mind, but that is not true. अगर लिखा होता कि watermelon, papaya both are not taken together, वो स्टोरी अलग होती. उसमें क्या था, watermelon लिया नहीं लिया that is okay, papaya लिया नहीं लिया okay, but दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए. तो if I talk about watermelon and papaya, there will be 4 cases possible.
what I am telling you, either watermelon or papaya, मतलब but not both, मतलब this. दोनों नहीं लेना है, वाटरमेलन या पपाया कोई एक लेना ही है, एक तो बड़ा फ्रूट हमें चाहिए which we are definitely going to pick. अगर बोला जाता भाई you are not supposed to pick both, मतलब you can take this also, एक भी नहीं लिया, that is also doing. So you need to understand the English behind this. Either watermelon or papaya, मतलब ये compulsory है दोनों में से एक लेना, क्योंकि दोनों नहीं लेना है. So what we can do, if we pick watermelon or we pick papaya, अगर मैं watermelon pick करता हूं तो what will happen? That will give you 11, 9, 6. watermelon pick किया, that is one way, और papaya नहीं किया, that is again one way. इधर आते 11, 9, 6. watermelon नहीं पिक करने का वन वे और पपाया पिक करने का वन वे, एंड दैट इज योर आंसर. बट इफ समवन सेज कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बट बोथ बनाना एंड पपाया एंड वाटरमेलन आर नॉट देयर, तो क्या करना पड़ेगा? टोटल में से सिर्फ वो केस माइनस करना है जिसमें ये दोनों पिक किया है, बट दैट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि उसमें ये वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस भी आ जाएगा जब हमने वाटरमेलन भी नहीं लिया और पपाया भी नहीं लिया. ओके, लेट्स डू दिस. वाटरमेलन भी लेना है, पपाया भी लेना है, तो 11, 9, 6 ये तो हर जगह आने वाला है. 11, 9, 6, 11, 9, 6, 11, 9, 6 ये तो हर जगह आने वाला है. नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू वर्क अराउंड W. फर्स्ट कहता है वाटरमेलन लेना है, वाटरमेलन लेना है, दैट कैन बी डन इन वन वे. सेकंड में वाटरमेलन वी हैव टू पिक, अगेन वन वे. नॉट पिक, अगेन वन वे. नॉट पिक, अगेन वन वे. पिक करना है या नहीं करना है, दोनों में वन वे ही होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पपाया. पपाया पिक करना है वन वे, पपाया नहीं पिक करना है वन वे, पपाया पिक करना है वन, नॉट पिक वन. इसमें से मैंने सिर्फ ये 2 केसेस लिए हैं, किसी में 3 केसेस हो सकते हैं, 4 केसेस का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो टोटल में आ जाएगा. सो दिस इज डिफरेंट दैन दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच पार्ट वी आर एक्चुअली सपोज टू पिक. So these are some possibilities that questions may be asked कि कहाँ से क्या पिक करना है, कौन सा पिक नहीं करना है. ये सब restricted repetition का आइडिया है. Just like Mississippi. Mississippi में क्या था, कुछ सेम थे, कुछ डिस्टिंक्ट थे, तो कौन सा पिक करना है, क्या पिक करना है, that is the idea. Second idea could be, अच्छा Mississippi was different than this. Mississippi इससे different था क्योंकि Mississippi में what we did is अरेंजमेंट किया था. अभी तो सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, अरेंजमेंट का स्टोरी तो अभी आया ही नहीं. अब अगर हमें अरेंजमेंट भी करना है देन व्हाट विल हैपन, तो फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें पता होने चाहिए कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी हैव, एंड देन वी आर एक्चुअली गोइंग टू अरेंज समथिंग. सो दिस इज वन पार्ट दैट इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन. सिमिलर होगा तो n+1 और डिस्टिंक्ट होगा तो 2 पावर n. नॉन एम्प्टी में दोनों में 1 1 केस माइनस कर देंगे और अदर केसेस होंगे तो विल गो लाइक दिस. ओके, सो अब यहां वापस आते हैं जरा. अगर मैंने एक बी ऐड किया तो 5b a से 6 केसेस, 1b के 2 केसेस, टोटल 12 होने चाहिए. टोटल केसेस शुड बी 12. बट वर्ड नॉन एम्प्टी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि कोई ना कोई तो हमें पिक करना पड़ेगा, और नॉन एम्प्टी करोगे तो -1 हो जाएगा फॉर नॉन एम्प्टी. सो डू यू थिंक कि 11 इज एक्चुअल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वर्ड्स? नो, इट इज नॉट, because this method is for selection only. You have to pick. You cannot say कि this is with the number of word, क्योंकि अरेंजमेंट अभी बचा हुआ है. अरेंजमेंट की बात करेंगे मिसिसिपी में, this is just number of selection, not the arrangement. So there I can say कि you can make 11 different selections. Let's note down कि वो 11 selections कौन से होंगे. एक हुआ A, एक हुआ 2A's, 3A's, 4A's, 5A's, फिर हुआ AB, AAB, AAAB,
A B, A B. These are only 10. 11th कहाँ गया? तो एक्चुअली एक ओनली बी भी तो आएगा. So these are these 11 selections. वर्ड अभी नहीं बनाया, वर्ड बनाएंगे. That will be मिसिसिपी में हमने किया था, लेकिन सारे के सारे लेटर्स यूज किए थे. और फिर दूसरा जो केस बताया था मैंने, उसमें क्या था कि अगर रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेशन में टोटल की जगह कम लेना हो तो क्या होगा. तो मिसिसिपी से जो 4 लेटर 5 लेटर वर्ड बने थे, दैट वाज द केस. हियर दिस इज जस्ट द सिलेक्शन, नॉट द अरेंजमेंट. अरेंजमेंट वाला केस विल बी टोटली डिफरेंट जो हमने मिसिसिपी में किया हुआ है. सो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस. थैंक यू.